یقیناً نکال سکتے ہیں خداوند کے پوتر کلام میں سے، خداوند کے زندہ کلام میں سے آپ نکال سکتے ہیں۔ غزل الغزلات کی کتاب ہے، سلیمان بادشاہ کی غزل الغزلات ہے، اس کا دوسرا باب، اس کی 10ویں آیت سے ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس کی جو 13ویں آیت ہے یہاں سے 14ویں آیت تک بلکہ اب ہم پڑھیں گے 13ویں تک۔ سلیمان کی غزل الغزلات کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی اور کہا، اٹھ میری پیاری میری ناز نیم چلیا، کیونکہ جاڑا گزر گیا، می برس چکا اور نکل گیا، زمین پر پھولوں کی بہار ہے، پرندوں کے چہچہانے کا وقت آ پہنچا، ہماری سرزمین میں کمریوں کی آواز سنائی دینے لگی، انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکیں پھولنے لگی، ان کی مہک پھیل رہی ہے، سو اٹھ میری پیاری میری جمیلہ چلی آ، اے میری کبوتری جو چٹانوں کے دراڑوں میں اور کراڑوں کی آڑ میں چھپی ہے، مجھے اپنا چہرہ دکھا، مجھے اپنی آواز سنا، کیونکہ تو محجوبین ہے اور تیری آواز شیریں ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین آمین۔ آج کا کلام خصوصی طور پر ایمانداروں کے لیے ہے، نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہے، جو یسوع مسیح کو پہن چکے ہیں، شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں، ان کے لیے ہے، خدا کی کلیسیا کے لیے ہے، فردن فردن ہر ایماندار کے لیے ہے۔ غزل اور غزلات کی کتاب، جس میں بڑی عمیق باتیں ہیں جن کو خدا کے فضل کے طفیل سمجھا جا سکتا ہے۔ میں اس کتاب کے بارے میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس کے تعارف کے حوالے سے کوئی زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنی بھی غزلیں سلیمان نے لکھی 1005، ان میں جو سب سے خاص ہے وہ یہ، اس میں جو گفتگو ہے وہ بنی اسرائیل کے نزدیک یہوہ خدا اور بنی اسرائیل قوم کی ہے، اور جو کرسچن لوگ ہیں ان کے نزدیک یسوع مسیح کی اور کلیسیا کی گفتگو ہے۔ 10ویں آیت سے ہم نے پڑھا ہے، ہم خصوصی طور پر 11ویں آیت سے گفتگو جو ہے وہ کریں گے۔ 10ویں آیت میں وہ باتیں ہیں جو محبوب نے محبوبہ سے کی۔ 10ویں آیت میں وہ باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا سے کی ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے ایک ایماندار سے کی ہے، اور اس کے بعد ایماندار وہ باتیں جو ہیں بتا رہا ہے۔ اس کے بعد جو باتیں ایماندار نے سنی ہے یا کلیسیا نے سنی ہے، وہ دوسروں کو بتا رہا ہے کہ میرے محبوب نے مجھ سے کیا باتیں کی ہیں۔ تو جو باتیں کی ہیں محبوب نے، ان میں 11ویں آیت سے سٹارٹ ہے، لکھا ہے، کیونکہ دیکھ جاڑا گزر گیا۔ کیا ہو گیا؟ جاڑا گزر گیا اور می برس چکا اور نکل گیا۔ اس سے پہلے وہ اس کو کہتا ہے، اٹھ چلی آ۔ آمین جی، اٹھ چلی آ۔ کون بات کر رہا ہے؟ محبوب۔ بات کس سے کر رہا ہے؟ محبوبہ سے۔ کون بات کر رہا ہے؟ دلہا۔ بات کس سے ہے؟ دلہن
जो उर्दू जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है जाड़ा। क्या जी? क्या? जाड़ा। तो इब्रानी जुबान में यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सोरेम। इब्रानी जुबान में जो यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जुमा जाड़ा किया गया है, एक ही मर्तबा यहां पर वो यूज हुआ है और उसका तर्जुमा जाड़ा है। और इंग्लिश लैंग्वेज ने उसके लिए यहां पर लफ्ज विंटर दिया है। लफ्जी तौर पर तो विंटर है, सर्दी का मौसम। और अगर आप सर्दी के मौसम की बात करें तो आपके यहाँ तो सर्दी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो ममालिक जहाँ सर्दी पड़ती है कई जगहों पर जो है वो कारोबार क्या जाते हैं। नहीं तो मरी को स्टडी करो, इस सर्दी के मौसम में मरी वाले अपने घरों में क्या हो जाते हैं, बंद, और अंदर ही अंदर रहकर वो काम जो करते हैं जो अंदर हो सकते हैं, कढ़ाई सिलाई या दीगर मीनाकारी के काम। तो यहां पर वो कहते हैं विंटर, जाड़ा, सर्दी। लफ्जी तौर पर ये सर्दी, लेकिन इस्तिलाही मानों में ऐसा मौसम जो डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसा मौसम जो परेशान कर सकता है, ऐसा मौसम जो वीरान कर सकता है, ऐसा मौसम जो रुकावट बन सकता है, ऐसा मौसम जो आपको किसी कमरे में बंद कर सकता है, ऐसा मौसम जिससे आप परेशान। तो यहां पर खुदा के लोगों से बात है और वो कहते हैं मेरी प्यारी 10वीं आयत में मेरी नाज़नीन, और नीचे वो कहते हैं मेरी कबूतरी और मेरी चुनीला। खुदावंद अपने लोगों पर फख्र करता है। खुदावंद अपने लोगों को खूबसूरत लोग जो है सिर्फ कहता ही नहीं बल्कि वो देख रहा है और देखना चाहता भी है। और वो कहता है चलिए अब छुपी ना रहे, अब हरासा ना हो, देख परेशानी का आलम खत्म हो गया, देख वीराना जाता रहा, सुनसाना जाता रहा, क्योंकि अब जाड़ा नहीं रहा, जाड़ा गुजर गया है, उजाड़ गुजर गई, रुकावट दूर हो गई, परेशानी जाती नहीं, अब उठ और चलिए। आमीन। रुकावट क्या बना हुआ था? जाड़ा। किसने रोका हुआ था? जाड़े ने। मैंने कहा जाड़े से जाड़ा लफ्जी तौर पर तो सर्दी का मौसम है, जाड़ा विंटर है लफ्जी तौर पर। इस्तिलाही मानों में जाड़े से मुराद रुकावट, जाड़े से मुराद उजाड़, जाड़े से मुराद वीराना, जाड़े से मुराद परेशानी। वो कहते हैं ये क्या हो गया है? क्या हो गया जी? गुजर गया है, जाड़ा छाता रहा है, अब छिपी ना रहे। 14वीं आयत को अगर आप पढ़े तो आपको याद होगा वो चट्टानों की दरारों में छुपी हुई थी। ये कहता है हाँ जी, कहां पर जी? कहां पर छुपी हुई थी? आपको याद होगा जब फलस्ती सुमसूर को पकड़ने के लिए आए तो कहां पर छुपा हुआ था? पढ़ लिया जी तब समझ आ जाएगी। दरार में। कहां? दरार में। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं, यहां उसने कबूतरी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और कबूतरी जब मौसम उसको परेशान करता है, जब उसको हालात परेशान करते हैं या दुश्मन परेशान करता है तो कहां पर वो छिप जाती है? दरारों में। और वो कलाम करने वाला अपनी महबूबा को कबूतरी के साथ तशबीह देता है और वो कहते हैं अब छिपे रहने का वक्त नहीं है, अब तो शादमानी करने का वक्त आ गया, अब तो खुशियां मनाने का वक्त आ गया, अब तो उदासी जाती रही,
का मतलब है सुस्ती छट। क्या कर दी? बोलिए जरा, आपकी आवाज आए। उठ का क्या मतलब है? सुस्ती छोड़, उठ चलिया। क्योंकि जाड़ा क्या हो गया है और आगे क्या है? मी क्या कर चुका है? बरस चुका है। आप डीपली जाए, बारिश जो है ये रूल उसको जाहिर करती है। किसको? रूह उसके नाज़िल होने को जाहिर करती है। क्योंकि जिंदगियों के अंदर गर्दो गुबार होता है, जिंदगियों के अंदर वो पौधा जैसे मुरझाया होता है ऐसे होता है, और जिंदगियां जो है मुरझाए से चेहरे होते हैं। लेकिन जब रूह कुछ किसी पर जुम्बिश करे, जब रूह कुछ छा जाए, यकीनन सब्जा और हरियावल और तरावत और शादमानी और ताजगी होती है। हर चीज खत्म हो जाती है जो पुरानी है, भूल जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शुरू में पैदाइश पहले चैप्टर पढ़े, स्टार्ट में आपको मिलेगा कि जमीन वीरान और क्या थी? सुनसान। क्या? वीरान और ते किनु किनु पसंद है सुनसान ते वीरान? हाथ खड़ा करो। वो किसी ਨੂੰ ਵੀ नहीं चंगा कीते हाथ नहीं खड़े ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, क्योंकि वरानियां ते उल्लू ਨੂੰ पसंद जे। स्टडी कर लिया, पढ़ लिया जाके ते देख लिया। किनु जी? बाइबल भी इस बात में आपको सपोर्ट करेगी, वहां उल्लू नाचेंगे। हाँ जी, तो किसी को भी पसंद नहीं है। बुरी जमीन वीरान और सुनसान थी, उजाड़ थी। आप मुख्तलिफ तराजुम को स्टडी करें। हिब्रू में तो यहाँ पर इब्रानी में आया है तहु व वहु, और इंग्लिश में मुख्तलिफ इसके तराजुम हुए हैं। किसी ने इसका एम्प्टी भी किया है, किसी ने फॉर्मलेस भी किया है, बेशक्ल थी, और किसी ने बेतरतीब भी इसका तर्जुमा किया है। और बाइबल के उर्दू तर्जुमे में वीरान और सुनसान आया है, ऐसी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर पाक रूह ने जुम्बिश की है। The Spirit of God moving face on the water. रूह एलोहीम मरखफीर अपने हमारे खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, जुम्बिश करती थी। पाक रूह ने जब जुम्बिश करी, जाड़ा जाता रहा। पाक रूह की जुम्बिश से उजाड़ खत्म हो गई, सुनसान खत्म हो गई। और उसकी जुम्बिश से जो खाली चीजें थी वो खाली ना रही, उनसे भर गई हरियावल और सपना और ताजगी और हर चीज नजर आने लगी। क्योंकि पाक रूह ने क्या की है? जुम्बिश की है। हाँ, जाड़ा था, वो कहता है जाड़ा है नहीं, क्योंकि वो चला गया। अब तो मींह बरस चुका है, अब तो ताजगी है मेरी प्यारी, मेरी नाज़नीन, मेरी कबूतरी, मेरी जमीला। अब उठ, अब बेदार हो, अब जाग जा, अब खौफ ज़दा ना रहे, बल्कि अपने खौफ से आजाद हो और चली आ। हालेलुया। क्या कर? चलिया। आगे वो कहता है मींह बरस चुका, इसका मतलब ये है कि पाक रूह नाज़िल हो चुका है। आमीन। इसका क्या मतलब है सास? पाक रूह नाज़िल, मींह बरस चुका, इसका क्या मतलब है? पाक रूह नाज़िल। बारिश होती है तो ताजगी आती है। बोलिए, बारिश आती है तो मुरझाए हुए पौधे क्या हो जाते हैं? ठीक। बारिश होती है तो मैल कुचैल भी। तो कहते हैं मींह बरस चुका है। आगे फिर वो उसके असरात बताता है। जमीन पर फूलों की क्या है? बहार है। जिन्ना चਿਰ पाक रूह किसी जिंदगी च ना आए ते चेहरे की होंदे ने? मुरझाए। सुबह 6 बजे ही चेहरे से कितने बजे होंगे? 12। लेकिन जब किसी जिंदगी में रूह को जुम्बिश करे, जब पाक रूह किसी जिंदगी में आ जाए, जब रूह को किसी जिंदगी पर छा जाए, चेहरे हशाश मुशाश, चेहरे तरोताजा, चेहरे पर रौनक, और ये खुदा की हजूरी के सबब से है। ये वही हजूरी है जो मूसा के चेहरे पर, जो दानियल के
بہار ہے جو دعا نہیں کر سکتے، یقین جانے جب ان پر روح القدس کی بارش ہوگی پھر وہ دعا کر سکیں گے۔ جن کے لیے دعا کرنا مشکل ہے وہی گھنٹوں گھنٹے دعا کر سکیں گے جب روح القدس کی کیا ہوگی، بارش ہوگی۔ اور یہاں پر ہے تو یہ کلیسیا، ہے تو یہ بلیور اور ایماندار، لیکن خوف زدہ ہے جاڑے کی وجہ سے، خوف زدہ ہے ماحول کی وجہ سے، خوف زدہ ہے حالات کی وجہ سے، خوف زدہ ہے غربت کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے۔ وہ دلیر کر رہا ہے اب تو پریشان نہ ہو، کیونکہ حالات کیا ہو گئے ہیں، تبدیل ہو گئے ہیں، موسم کیا ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے۔ اب تو سستی چھوڑ دے، اب تو بیٹھی نہ رہ، اب تو غفلت کا شکار نہ ہو، اب تو چلی آ۔ آگے کہتے ہیں پرندوں کے چہچہانے کا کیا ہے، پرندوں کے چہچہانے کا وہ کب کہہ رہے تھے آج مرغانے چمن کو، ہاں جی باجی چلتا کب کہتے ہیں وہ، جب یسوع مسیح آیا تو اس وقت یہ شاعر نے کہا، ویسے ہی نہیں کہتے۔ اور آپ کو یاد ہے ابلیس کو یہ کہا جاتا ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ پرنس آف ڈارکنیس ہے، تاریکی کا شہزادہ ہے۔ تو جب بجلی توڑ جائے تسی بھی تھی نہیں دے دے تے لوگ مایوس نہیں ہو جاتے، پریشان جو ہو جاتے ہیں۔ تے جدوں ایک دم ہوندی گھنٹے بعد کدی شور دی آواز سنی جی، ایک دم جدوں ہوندی ہوندا نا شور، تو یہاں پر جب نوروں کا نور آ گیا ہے، یسوع مسیح آ گیا ہے، تو وہ کہتے آ گیا ہے کیا جی، باغبان گلشن ہزارہ ہو گیا، باغبان آ گیا نا۔ پہلو تو سارے مالی شالی دوسرے تیسری ہوتے رہے جڑے سستی کرتے رہے، ہوں آ گیا صحیح بندہ، ہوں ہریاول آئے گی۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں اب پرندوں کے چہچہانے کا کیا ہے، وقت ہے۔ اور ہماری سرزمین میں کمریوں کی کیا کرنے لگی ہے، آواز، کمریاں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں سب جدو باغ کے اندر بہار ہوئے نا ادو اتنے پرندیاں دی آوازاں بہت آتی ہیں، کیا خیال ہے؟ تو بڑی شاعری ہے، ویسے نثر بھی ہے، یہ بڑا ادب ہے کہ بلبل دا تعلق کدے نال ہے، بہار دے نال ہے، کدے نال ہے، پھول دے نال ہے، کدے نال ہے، ہریاول دے نال ہے، سبزے دا نال ہے۔ جدو باغ ہی اجڑ گیا تے پھر اجڑے باغاں دے ہاں جی اتنے بلبل کتنے لگنی۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں اب افسردگی نہیں ہے، اب پریشانی نہیں ہے، کیونکہ روح القدس نازل ہو چکا ہے، اور اب تو ہر طرف نغمے ہی نغمے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب کسی زندگی کے اندر تازگی آتی ہے، کسی زندگی کے اندر خدا کی حضوری آتی ہے، انہوں پاویں کہو تے پاویں نہ کہو، وہ خود ہی گیت گانا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں تو کہنا پہنا بھائی جی تسی شروع کرو، وہ نکلے اگلے کو پانی مار۔ میں نے دیکھا ہے چرچ میں خود، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ فلاں فلاں، نہیں تو 200 ملک سے تو لڑا ساری گل بات، ہاں جی۔ تو یہاں یہ ہے، لیکن جب کسی زندگی کے اندر روح القدس کی بارش ہو جائے، جب کسی زندگی کے اندر خدا کی حضوری آ جائے، جب کسی زندگی کے اندر آسمانی مسا ٹھہر جائے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کمریوں کی طرح خود ہی گیت گانا، ناچنا بجانا شروع کر دے۔ پرندوں کے چہچہانے کا کیا آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ روح القدس کے نازل ہونے سے موسم کیا ہو سکتا ہے، چینج۔ آپ کی زندگی کا سماں کیا ہو سکتا ہے، کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ جب آپ کی زندگی میں پاک روح جنبش کرے گا، پاک روح جنبش کرے گا تو سماں کیا ہو جائے گا، چینج۔ آپ کو یاد ہے وہ سمسون بندھا ہوا تھا بیڑیوں سے، زنجیروں سے، اس کو باندھ کے لے کے آ رہے تھے اوپر۔ جب دشمنوں نے دیکھا تو وہ کیا کرنے لگے، للکارنے لگے، کیا کرنے لگے، نعرے مارنے لگے، بڑے خوش۔ آج
साडे कब्जे च आ गया ही। हालेलुया बोलने वाला आज साडे कौम नू लीड करने वाला आज साडे कब्जे च। बड़े खुश होए उन्हें वेख्या तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि खुदा का पाक रूह उस पर जोर से नाज़िल हुआ। कलाम कहते हैं उसके हाथों की रस्सियां जल गई। तो फिर आप जानते हैं समा ही बदल गया। वो बंदरों वाला समा नहीं, वो मायूसियों वाला समा नहीं, उदासियों वाला समा नहीं, परेशानियों वाला समा नहीं। रूह कुछ नाज़िल हुआ, बंधन टूट गए। और ना सिर्फ उसके टूटे बल्कि कौम की परेशानियों के बंधन भी टूट गए, क्योंकि रूह कुछ से नाज़िल हुआ। और परेशानियां मायूसियां छत रही और शादमानी में तब्दील हो गई। मायूसी का दिन शादमानी में बदल गया, परेशानी का दिन शादमानी में बदल गया, और शिकस्त का दिन फतह में बदल गया। क्योंकि यहाँ पर भी जो कहता है नी बरस चुका है, ये रूह उसके नाज़िल होने की बात है। उनकी ने बहार कली फूल होती। किसी ईमानदार की जिंदगी में रूह उसकी वजह से बहार आ सकती है। किसी बिलीवर की जिंदगी के अंदर रूह उसकी वजह से ऐसी तरोताज़गी आ सकती है। आगे कहता है हमारी सरजमीन में कुमरियां क्या करने लगी हैं? बोलिए, कुमरियां क्या करने लगी हैं? उनकी आवाज सुनाई देने लगी। फिर एक गीत है, शादमानी का गीत है, खुशियों का गीत है, ताजगी का गीत है, बेदारी का गीत है, बहाली का गीत है, बादल की कैफियत का एक गीत है। वो कहते हैं कुमरियां। कौन जी? याद है कबूतरी कुमरी ईमानदारों को बाइबल ने कहा। किनको जी? ईमानदारों को। क्या कहा? कुमरी और कबूतरी। वो उन्होंने भी कबूतरी लाई थी, याद करो। कौवा के शरीरा क्या गया है, लेकिन कबूतरी और कुमरी किनको कहा गया है? ईमानदारों को। कौन गा रहे हैं? कुमरियां। हालेलुया। कौन गा रहे हैं? कुमरियां। रूह उसके नाज़िल होने से, क्योंकि समा बदल गया है। और समा क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अब वो कहते हैं अंजीर के दरख्तों में हरे अंजीर क्या करने लगे? ऐसी गल बड़ी स्वादी जी, सुनोगे तो मजा आएगा। हाँ जी, की वो लगे दरख्तों में हरे अंजीर क्या करने लगे? ये अंजीर दरख्त की गल होगी कि फल की होगी? शाबाश दसो। हाँ ओ भाई, फल की गल होगी। मौसम है ना, बारिश के बाद की बात है। अब कहते हैं क्या करने लगे? अंजीर। तो हम तो डेफिनेशन कर रहे हैं, इसकी तफसीर कर रहे हैं। बाइबल के मुताबिक दरख्त इंसानों को ज़ाहिर करते हैं। किनको? इंसानों को। अंजीर यहाँ पर आपको ज़ाहिर कर रहा है, ईमानदारों को ज़ाहिर कर रहा है। मुख्तलिफ पौधे ने ए बाग कलीसिया खुदा दी। हाँ जी, ये मुख्तलिफ की ने पौधे ने। अंजीर का भी हो सकता है, और केड़ा बोलिया तो करो, पौधे तोड़िया तो करो। अंगूर का भी हो सकता है, जैतून का भी हो सकता है। हाँ जी, बकल मुखो दुगिया पहाड़ी किकर भी हो सकता है। लेकिन असल में जो लगाया गया है वो बाग ही है, नहीं लाया कि आपे में चुग गए जी। तो यहाँ पर एक ईमानदार की बात है, जिसको यहाँ पर अंजीर से वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो तो समय की बात कर रहा है, मौसम की बात कर रहा है। अंजीर किसको ज़ाहिर कर रहा है यहाँ? ईमानदार को, जिहदे काम अधूरे ने। फल किनू ज़ाहिर करदा है? कम्मां नू। आंदा उन्हां दे फलां तो उन्हां नू की कर लोगे?
पहचान लोगे, समझ आ जाएगी अच्छा है जीरे के पहाड़ी की करे कि ऊँट कटारा है या की, फलों से पता चल जाएगा। तो कहता अब पकने लगे हैं जेड़े काम पहले अधूरे सन, रूह कुदस की बारिश हो गई है, हुण की हो गए ने कामल हो गए ने, वही काम की हो गए ने कामल हो गए ने, पूरे हो गए ने। जिदे किसी काम नूं भी पूरा नहीं था पाया, हुण रूह कुदस जिंदगी च जो खुश कर गया, हुण आ गया, हुण काम की हो गए ने, बोलिए काम जो है आप ठीक हैं, बेहतर हैं, और ताकि क्या होने लगी हैं, ये है नए लोग कलीसिया में पैदा होने लगे हैं। ताक अंगूर की बेल की जब वो लगाई जाती है डाली काट के उसको ताक कहते हैं, ताक वैसे भी अंगूर की बेल को कहती है। तो कहते हैं क्या करने लगी है, वो फूलने लगी है, नए लोग खुदावंद को कबूल करने लगे। इससे मुराद ये है नए लोग खुदावंद में आने लगे हैं। इससे मुराद ये है, आगे लिखा है उनकी महक फैल रही है। किनकी महक फैल रही है? हाँ जी, वो जेडे नवे लोग पैदा हुए ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ईमानदार हो जाता ना पुराना, उदों की गल हो रही, जो नवा नवा खुदा नाल प्यार करता है ना स्टार्ट लेना, उदों बंदा बड़ा सरगर्म ते बेदार होता है। हाँ जी, उदों जेडे भी चर्च ते दोपहर भी चर्च, हाँ जी एक भाई चेंज होया ते मुरब्बे ही मेरे पीछे चला गया। हाँ जी, ते उस तो बाद पता नहीं वो कितने रहिंदा है, सरदार च कदी आया ही। तो यहाँ पर वो कहता है उनकी महक क्या हो रही है, क्या हो रही है जी, फैल रही है। वो दुआ करेंगे ताई मैं पता चलेगा, वो खुदा की हजूरी में ठहरेंगे, क्योंकि नवा नवा की होता जोश जबरदस्त, और उनकी गवाही भी दाएं बाएं जाएगी कि फलां शख्स इतने टाइम ही कितने होगा है, बड़ी दुआ करता है, बड़ी दुआ करता है, गवाही दाएं बाएं पहुंच रही है। ये है महक फैल रही है उनकी। आगे वो कहता है सो उठ मेरी प्यारी मेरी जमीला चलिया। कितनी बार उन्हें क्या लिया, ऊपर भी शुरू में भी यही था और आखिर पर भी इस गल से की दिता है जोर, ऐसा ही है। ये बिलीवर के लिए है, ईमानदार के लिए है, जो है ईमानदार लेकिन है सुस्त, गफलत की है, खौफजदा, उसको वो कहता है उठ और क्या कर, चलिया। आगे आखिरी बात वो कहता है तू जो चट्टानों की दरारों में क्या है, छिपी है। इसलिए आज ईमानदार को बात करने की क्या है, बात को कबूल करने की क्या है। ये वो बातें हैं जो महबूब ने महबूबा से की थी, और हमें कौन बता रही है, महबूबा, क्योंकि मेरे महबूब ने मुझसे क्या की है, मेरे खुदावंद ने मुझसे क्या की है, बातें। ते त्याडे कोल भी गल्लां कोई है ने दूसरे को दसन ले, यहाँ पर तो ये महबूबा बता रही है। क्या ख्याल है, कितने लोगों का यीशु मसीह महबूब है, हाथ खड़ा करें, शाबाश। उधर उन्होंने पूछा, हाथ खड़ा करें, शाबाश। कितने लोगों का महबूब है, शाबाश। सारे करिए, सोच के हाथ खड़ा करे, क्योंकि महबूब को भी हाथ खड़ा कर रहे हैं जिदा दुआ कर लूं दिल, वो भी कहता मेरा महबूब है जिदा चर्च होनू दिल, वो भी कहता महबूब है जिदा अपना दाई की पैसा ही खाई जा रहा है। हाँ जी, खुदा का पैसा देने दिल, लेकिन सोच के जिहड़ा दुआ च ठहर सकता है उहदा वक्त गुजार सकता है, क्योंकि महबूब दे कोल ते उठण नूं दिल करदा ही, दिल करदा है ठहरे रहिए ते छुपे रहिए, है ना। तो इसलिए हमें ये बातें सुनी है आज, और फिर दूसरों को बताने की जरूरत है, ताकि दूसरे भी उसकी मोहब्बत के क्या हो जाए, गर्विदा हो जाए। अगर रूह उसकी जुम्बिश हमारी जिंदगी में नहीं है तो प्रेयर कीजिए, दुआ कीजिए, खुदावंद तेरा पाक रूह मेरी जिंदगी में जुम्बिश करे, ताकि जाड़ा जाता रहे, वीरानी जाती रहे, सुनसानी जाती रहे, ताजगी आ जाए, बहार आ जाए, हरियावल आ जाए, सब आ जाए, शादवानी आ जाए, और मैं तेरे चरणों में ठहरा। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी बख्शे। आमीन।